ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੌਂਕੀ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 600 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਧਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਲੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ DSP ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ ਚ ਜੈਨਪੁਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਢਵਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ BN ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਢਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥਾਪਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੂੜਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਚੌਥੀ ਸੜਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, 2-2 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਢਾਬਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਅਕਰੋਚਮੈਂਟ ਏਡੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਆ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਲੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਕੂੜੇ ਆ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਕੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਸੜਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਢਾਬਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਢਾਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਗਲਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸੀ ਚੌਂਕੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਲੋਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਲਸ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਲਸ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਲਸ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ। टाइम्स पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ आज हम रूबरू करवाने जा रहे हैं। बात करते हैं लोगों की, आम पब्लिक की सेफ्टी के बारे में, जिसको लेकर आज पंजाब की गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आम जनता की सेफ्टी की बात करें तो क्राइम रेशो को कम करना, एक्सीडेंट्स को रोकना उनके ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन आप देखिए अगर आम पब्लिक निकल के बाहर आती है, सरकारों से हाथ मिलाने की कोशिश करती है, क्राइम रेशो को घटाने की कोशिश करती है, उसके बाद उनके साथ क्या हाल होता है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं NHAI, जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक पुलिस चौकी को गिरा दिया गया है एंक्रोचमेंट के नाम पर। बहुत बार हमने देखा एंक्रोचमेंट के नाम पर जी हाँ ठेकों को गिराया जाता है, दुकानों को गिराया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी
एक अहम मुद्दा है कि लोगों की सेफ्टी को लेकर जो पुलिस चौकी है उसको गिरा दिया गया है, साथ ही साथ अंदर का जितना भी सामान था उसे भी जलाया जा चुका है। हम यहाँ पे खड़े हैं लुधियाना के जालंधर हाईवे पे, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी है एलडीको, जहाँ के प्रेसिडेंट नवल थापर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ लोकल रेजिडेंट्स भी हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी लोगों की सेफ्टी को लेकर कि पुलिस चौकी बनवाई गई थी, लेकिन आज लोगों की सेफ्टी को आप देख सकते हैं किस तरीके से हाल हो चुका है। हमारे साथ प्रेसिडेंट नवल थापर जी जुड़ चुके हैं। जी सर, एग्जैक्टली पूरा मामला क्या रहा, कब हुआ ये पूरा, वो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या हुआ एग्जैक्टली? मैडम, ये चौकी मैंने 2021 में बनवाई थी। ये क्राइम बहुत था हमारे यहाँ पर, आए दिन वारदात होती थी। 70 चोरियां हमारे एलडीको में हो चुकी थी। बच्चे सेफ नहीं थे। जो दिलरोज का जिसको लड़की को फांसी हुई, जिसने मार के इधर दबाया था, ये साथ में प्लाट है जी सारा। हम बिल्कुल अनसेफ थे। फिर मैंने जो पीसीआर इंचार्ज लुधियाना अपने सुधाकर अली जी है ना, उनको हमने बताया कि इधर हमारे चोरी बहुत हो रही है। फिर उन्होंने मुझे हेडक्वार्टर साहब से मिलवाया, जंग बहादुर जी से, एसपी हेडक्वार्टर साहब से। उन्होंने हमें परमिशन दी कि आप बना लो। जंगलात वाले आए, वो भी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ हम भी नहीं यहाँ घूम सकते रात को, इतना क्राइम है। ठीक है, वो उन्होंने फिर मैंने ये 5 लाख रुपया लगाकर ये यहाँ फर्नीचर, एसी, फ्रिज, टीवी सारा कुछ मैंने दिया इनको। बाथरूम भी बना के दिया, शेड भी पा के दिया गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए। पीसीआर हर्टिंग पॉइंट बनाया। एडीसीपी मैडम अश्विन गोटियाल इसका मुहूर्त करके गया। अंदर से 400 आदमी हम सारे लोग आए, बड़ी खुशी मनाई इधर जो जब बनाई ये चौकी। उसके बाद क्राइम मतलब कम नहीं हो रहा था। तो 2 साल पहले मैंने फिर सीपी साहब से, सीएम साहब से मैं दरखास्त दी कि क्राइम आधा हुआ है, पूरा मतलब कमी ख़त्म नहीं हुआ जहाँ पर। फिर उन्होंने सीएम साहब ने यहाँ हमको मुलाजिम पास कर दिया, 8 मुलाजिम दे दिए हमको। 8 मुलाजिम आकर बैठने लगे, जहाँ काम चल पड़ा बहुत अच्छा। यहाँ 10 क्रिमिनल उन्होंने हार्ड क्रिमिनल पकड़ ले, बहुत अच्छा है। सारे इधर क्राइम कम हो गया। जिस सरपंच साहब खड़े हैं, इन्होंने भी बताया आपको। सारे पूरे गांव के कितने सरपंच आए थे, बड़े खुशी मना रहे थे कि अच्छा इधर हमें बहुत अच्छा हो गया है ना। 37-38 हज़ार इधर की पॉपुलेशन है। कोई 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर उधर, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एरिया कोई पुलिस थाना नहीं है। कोई भी वारदात होती थी आधा घंटा पौना घंटे बाद पुलिस आती थी यहाँ। एम्बुलेंस भी मैंने लवाई। फिर हमारे डेथ हो रही थी रोज़, ये एम्बुलेंस लगी। ये मैंने सारा पैसा अपने पोल से लगाया, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होते थे, बच्चे किसी के खून से मतलब गिरे होते थे एक्सीडेंट से। पुलिस और गाड़ियाँ रोकने के लिए पुलिस चाहिए थे, एम्बुलेंस चाहिए थी उनको, है ना। तो उसको मैंने ये एम्बुलेंस भी लगवाई यहाँ पर। ये 2 साल से सारा कुछ अच्छा चल रहा था, 6 महीने से, है ना। तो अभी कुछ शरारती बंदे, कोई शराब पीने वाले इधर खड़ते थे, जो गाड़ियाँ लगा के अंदर जाने से पहले उनकी शराब बंद हो गई। जब चौकी खुल गई, सारे पुलिस खड़ गई, सारा, है ना। तो उन्होंने कोई ना कोई इसको रंगत दे दी पॉलिटिकल कि यहाँ क्रिमिनल आते हैं, यहाँ लोग स्कूटर लगाएंगे, मोटरसाइकिल लगाएंगे, यहाँ गाड़ियाँ पड़ के इधर लगाएंगे सारी। अभी की पर्चा तो दर्ज यहाँ होना ही नहीं था, सलीम टाबरी थाने के अधीन थी ये है। पर्चा वहाँ होना तो सुपुर्दगी वहाँ थी, कोई भी गाड़ी पकड़ते थे वहाँ जाती थी, यहाँ नहीं रखनी थी। यहाँ सिर्फ पुलिस हेल्प हमको मिल गई थी, चौकी खुल गई थी। FIR भी उधर होनी थी, इन्होंने पकड़ के उधर ही देने से सारे बंदे, ठीक है ना जी। पर किसी लोगों के माइंड में गलत मतलब तरीके से ये डाल दिया। यहाँ 10-20 बंदे खड़े होके MLA 3 बुला लिए, मदन लाल बग्गा, बोला गरेवाल और पप्पी शाहपुरिया। किसकी तरफ से बुलाया गया यहाँ के MLA? लोगों ने जो शरारती लोग से, उन्होंने मिसगाइड करके, अंदर उनका एक वर्कर है, उसने उनको मिसगाइड कर दिया कि इधर 200 बंदा इकट्ठा हुआ है कि चौकी मत। अखबार में दे दूंगा आपको, 20 बंदे थे यहीं पर बैठे थे, 3-4 हमारे बुजुर्ग लेडीज, जिनको बेचारे को पता ही नहीं, उनके बच्चों के लिए यही सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस होने के लिए लगी हुई है। अभी हार्ट अटैक किसी को आएगा, यही एम्बुलेंस उनके काम आनी थी ना। तो उनको भी गलत तरीके से यहाँ बिठा के 10-5 बंदे, मैं तुम्हें सारा अखबार देता हूँ, 20 बंदे से ज़्यादा नहीं चाहिए, 2000 बंदा अंदर रहता है, ठीक है ना जी। वो MLA तीनों ने उसी वक्त ये काम बंद करा दिया। अगले दिन नेक्स्ट डे उन्होंने सारा पुलिस थाने वापस बुला ली पुलिस। मतलब जो CM ने पास की वो MLA कैसे, मतलब ये तीनों ने। लेकिन जब आप उनके साथ रूबरू हुए, उनकी तरफ से किस तरीके का आश्वासन दिया गया? मेरे को तीनों MLA को मैं जाके फिर बोला कि भाई ये तो सुरक्षा के लिए बनाया है, एम्बुलेंस है, हमें तो जब जरूरत है, आप ऐसा काम मत करो। तीनों ने बोला 5 तारीख को इलेक्शन खत्म हो जाएगा, 6 तारीख तुम्हारी पुलिस यहाँ आ जाएगी जी।
आश्वासन दिया, आज ये इसको सारा ढेरोढेरी कर दिया जी। तो इससे पहले आपको कोई नोटिस में नहीं डाला गया कि इस तरीके का कदम उठाया जा तो पुलिस को, कोई पुलिस का आप बात कर लो इंचार्ज साहब से, उनको भी कल नहीं बताया ढाने के इससे पहले जी, उनको भी नहीं इतला दी। उन्होंने पर्चा दर्ज किया है चोरी का, ये जो सामान लेके गए ना सलेम टावरी थाने में पर्चा दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस टाइम ये स्टेप उठाया गया एनक्रोचमेंट के नाम पर, तो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, आप एज अ प्रेसिडेंट आप उस टाइम कहाँ थे? आपके नोटिस में कुछ पहले नहीं दिया गया? मैडम मेरे को 10 दिन पहले हार्ट अटैक आया, ये एम्बुलेंस इन्होंने रात को तो बंद ही होगी, जब पुलिस चलेगी वो भी चले जाते हैं, दिने दिने खड़ती है। मुझे सुबह 6 बजे हार्ट अटैक आया, 7 बजे मेरे बच्चे मेरे को अपनी गाड़ी में लेके गए डीएमसी, और 10 दिन पहले आया। मैं यहाँ खड़ भी नहीं सकता, मैं तो ये इतना बड़ा गलत काम इन्होंने कर दिया, मेरे को आज आना पड़ा। सारी कॉलोनी को मालूम है कि मेरे को हार्ट अटैक आया 10 दिन पहले। मेरी आप फाइल देख लो, घर में पड़ा है, मेरे बाईपास सर्जरी होनी है डीएमसी में, मेरा आप देख लो फाइल अभी घर में आके मैं दिखाता हूँ आपको। पर ये इतना बड़ा गलत काम कर दिया, सारे पंजाब में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस चौकी और एम्बुलेंस को किसी ने शराबियों ने उठवा दिया हो। सर, जो इतना बड़ा कदम NHAI की तरफ से उठाया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर रहा होगा या किसका प्रेशर रहा होगा? उन्होंने प्रेशर से कार्रवाई की है, क्योंकि वो सारी अक्रोचमेंट है। आप देख लो, ड्यूक से पहले तक सड़क बनी है, ये सड़क आगे सारी जानी है, लेके नहीं आ रहे। सारे पैलेसों ने, सारे होटलों ने सभी कब्जा करी बैठे हैं, उधर धार्मिक स्थान सारे कब्जा करी बैठे हैं। देखो वो नहीं नजर आ रहा, उसको सारे महीना ले रहे हैं जी वो। ये तो सरकारी था ना, जहाँ से तो कुछ मिलना नहीं था उनको, इसको ढहा दिया जी। तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? हमारी गवर्नमेंट को? आपको लगता है कि उनकी वजह से इस तरीके का कदम? 3 MLA सर मैडम ते DIG फरूकी, जिसने CP साहब को प्रेशर किया हमारे, ऑर्डर उन्होंने किया है पुलिस को वापस बुलाओ। अंदर का एक प्रभावशाली आदमी है, उसी ने सारा ये काम DIG फरूकी से करवाया है। कि तीनों MLA ने ये इसमें घी में आग डाली है। अभी की ये MLA इनसे मुहूर्त मैंने कराना था, इनका मदन लाल बग्गा जी का नाम वो अखबार में मैं आपको देता हूँ, मैंने इनका धन्यवाद डाला है, ये चौकी बनाने मदद कराने के पास उनका धन्यवाद डाला हुआ है अखबार में। उनकी आज कितनी इज्जत होनी थी, सारे लोगों ने उनकी इज्जत करनी थी, जो आज उनके नाम पे सारा ये पड़ गया। बिल्कुल। कुछ और लोकल रेजिडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में आप? ये चौकी जो है बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद थी। यहाँ पे क्राइम इतना था कि हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई सामने रोड पे यहाँ पे किसी का मोबाइल लूटते थे, किसी को मारपीट होती थी, किसी से छीनते थे, ये चलता था। पुलिस चौकी बनने के बाद यहाँ अप टू 90% कंट्रोल हो चुका था। इसका ये सारे एरिया को फायदा था। ये इधर आगे जो है लोग फ्लोर से जो क्रिमिनल आते थे और यहाँ से लूट के भागते थे, तो यहीं रोकते थे ये लोग। तो ये तो इतना फायदा था कि पूछिए मत आप। और ये जाने के बाद सारे ये लोग समझ लो आप अनाथ हो चुके हैं। यहाँ कोई किसी का कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं है, वो अपनी मर्जी करते हैं। यहाँ एक आदमी को कल परसों लूटा है, यहाँ मोबाइल छीन के काट पीट गए आदमी को, बहुत बुरी तरह क्राइम बढ़ गया है। उसके बाद चौकी जाना यहाँ की बहुत ही मंदभागी ये खबर है आप लोगों के लिए। और इन्होंने जिन्होंने किया है उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो अब आप सारे लोकल रेजिडेंट्स क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि दोबारा इसको रिस्टोर करके चलाया जाए इसी चौकी को। इसको चलाना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ सब लोग अनसेफ हैं। सब तो सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। ये मींस एक अनसेफ जोन माना जाता है। जोन है पूरा, क्योंकि आगे जंगल पड़ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, लोग क्राइम करते हैं उधर भाग जाते हैं। तो ये उनके लिए, हमारे लिए हम 100% अनसेफ है इस समय। तो हम लोग चाहते हैं कि दोबारा इसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करें। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ, मेरा घर बिल्कुल फ्रंट पे है। हमें तो चौकी का बहुत फायदा था। एक तरह से हमारे लिए जेड सिक्योरिटी थी, मतलब इतनी महंगी सिक्योरिटी। हमारे सिक्योरिटी वाले तो रात को सो जाते थे, पुलिस वाली हमेशा गाड़ी हमारे आगे जब भी खड़ी रहती, तो यहाँ कोई भी आदमी यहाँ आसपास भी नहीं आता था। जब से गए हैं फिर वही हाल हो गया है। चौकी जाते ही सारे क्राइम वैसे का वैसे वापस आ गया है। कोई मोटरसाइकिलों पे वही लूटपाट होनी शुरू हो गई है। जैसे आपको लग रहा है कहीं ना कहीं लेडीज भी अनसेफ होगी, क्योंकि वो भी बाहर निकलती है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, स्कूल तक जाना है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक फिर से वही माहौल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज हो, हमारा लेबर का एक लड़का इन्होंने लूटा है, वो रात को हम फिर उस पर हमें खुद छोड़ के आना पड़ा। यहाँ से आते हुए यहीं पे मल्होत्रा पैलेस के पास उसको लूट लिया लोगों ने इन्होंने। लेडीज के लिए भी है, ट्यूशन जाते हैं बच्चे, सबके लिए सेफ्टी है। मतलब पता नहीं लोगों को क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ठेके तो बंद होते हैं देखो,
मतलब पुलिस चौकी के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गई। आप देख रहे हैं कि लोकल रेजिडेंट्स काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। जी सर। जी नमस्कार जी, मैं प्रतीक जैन कोचर रेजिडेंट अल्डिको में रह रहा हूँ। 6 साल से यहाँ मैं रह रहा हूँ, लेकिन 6 साल पहले जब आते थे तो इतना मतलब डर लगता था कि एकदम खाली एरिया, जंगल एरिया। और जब से ये चौकी लगी है तब अपने आप को सिक्योर फील करते थे, बट अब जब से ये वापस चौकी हटी है तो रात को आने में फिर वो उतना ही डर लगता है और डेली वारदातें यहाँ सामने होती है, तो हम डर लगा रहता है रात को आने में जाने में, और अपनी फैमिली को भी हम सिक्योर फील नहीं करते। आज मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बाहर बस तक भी छोड़ने के लिए आना पड़ता है दोपहर को 2 बजे भी, तो दोपहर के दिन भी हम लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। तो मेरी तो यही मतलब सरकार से यही अपील है कि ये चौकी दोबारा जल्द से जल्द वापस लगाई जाए। बिल्कुल। आपको फिर से एक बार तस्वीरें हम आपको पीछे दिखा देते हैं कि इंक्रोचमेंट के नाम पर किस तरीके से पुलिस चौकी को NHAI के द्वारा गिरा दिया गया है। पर्चा उनके ऊपर दर्ज हो चुका है, लेकिन अब आने वाला टाइम बताएगा कि एल्डिको के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं इस एरिया को अनसेफ जोन मानते हैं, Nur der Bass vertreibt den Kummer und den Hass. Weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, holt doch die